Turn on your cameras, everyone. I said turn on your cameras, everyone. Otherwise, leave the class. मतलब मुझे Screen is visible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen is visible, children? Yes, ma'am. Yes, Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Again and again it is connected. I don't know why. So today we have to do question number 4, right? Yes, Yes. Yes, ma'am. Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode to be a turning point in his life? So write down, children. Why do you think Gandhiji considered the Champaran episode C of Champaran will be capital, children, because this is specific noun. Champaran episode to be a turning point, to be a turning point, Turning, turning point in his life. आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो चंपारण एपिसोड था, चंपारण में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी इश्यूज हुए, वो जो था, वो जो इश्यूज थे, वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो गांधी जी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेके आया. सो राइट डाउन द आंसर. दिस एपिसोड proved that proved that the British could not, B of British will be capital. This episode proved that the British could not order Gandhiji. British could not order Gandhiji. G of Gandhiji will be capital. Gandhiji about in his own country. About in his own, O-W-N, own country. Full stop. He was ordered to leave Champaran. किसको ऑर्डर किया गया था चंपारण छोड़ने का? Tell me, children. चंपारण छोड़ने का ऑर्डर किसको मिला था?
ओनली वन स्टूडेंट नो। मैं 6 दिन लगाकर आपको चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपसे एक आंसर नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टिवली बोलिए, who got the order to leave Champaran? गांधी जी। गांधी गांधी जी। Okay, fine. The British could not order Gandhiji about in his own country. He was ordered to leave Champaran, he was ordered to leave Champaran, 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 but he refused. Full stop. पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो इनको लगाया करो, तभी आपके सेंटेंस का मीनिंग है वो बनता है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीनिंग क्या चल रहा है इसका। बट ही रिफ्यूज्ड, फुल स्टॉप। गांधी जी वॉज समन्ड, गांधी जी वॉज समन्ड, SUMMONED, समन्ड to appear before the court. Gandhiji was summoned. समन का मतलब होता है रिटर्न में आपको एक ऑर्डर आता है, रिटर्न में आपको आपके घर पे जो है वो एक नोटिस आता है कि आपको जो है वो कोर्ट में आपकी पेशी है, राइट। गांधी जी वॉज समन्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, COURT, फुल स्टॉप। गांधी जी प्रेजेंटेड हिज केस, गांधी जी presented his case, Gandhi ji presented, PRESENTED, presented his case, CASE, case forcefully, FORCEFULLY, forcefully. Full stop. At last, comma, at last, comma, at last, comma, the government had to drop the case. At last, comma, the government had to drop the case. Full stop. Spelling of government is given here. GOVERNMENT. I'm repeating again the answer. Can you check? This episode proved that the British could not order Gandhiji about in his own country. He was ordered to leave Champaran, but he refused. Gandhiji was summoned to appear before the court. Gandhiji presented his case forcefully. At last, the government had to drop the case. क्या हुआ था? गांधी जी जो थे वो बहुत ही सिंपली चंपारण में गए थे सब विजिट करने के लिए, 1-2 दिन वहां ठहरने के लिए कि आई विल जस्ट सी द कंडीशन व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। लेकिन गांधी जब वहां पे पहुंचे एंड ही टॉक्ड विद कमिश्नर, तो जब उनको ऑर्डर मिला, व्हेन ही गॉट द ऑर्डर दैट लीव चंपारण, लीव तिरहट, जब गांधी जी को ऑर्डर मिला कि भाई यू आर आउटसाइडर, आप एक आउटसाइडर हैं एंड यू हैव नो राइट टू नो अबाउट द थिंग्स हैपनिंग हियर, कि आपको कोई ऐसा राइट नहीं है चंपारण के बारे में जानने का, यहाँ पे कुछ भी चल रहा है आपको हम नहीं बता सकते, कोई इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते बिकॉज यू आर आउटसाइडर। सो गांधी जी ने तब जाके सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब भारत हमारा देश है और हमारे देश में अगर ब्रिटिशर्स हमें ऑर्डर कर रहे हैं दैट लीव द चंपारण, ओके मैं बिलोंग नहीं करता हूँ चंपारण से, मैं मान लो हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, मैं बिलोंग नहीं करती हूँ केरला से, तो इट डजंट मीन कि केरला में जाकर मुझे जो है वो किसी अदर कंट्री के लोगों के रूल्स को फॉलो करना पड़े, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्टली वी आर इंडियन, आफ्टर दैट हम स्टेट वाइज आते हैं, आफ्टर दैट हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आते हैं, आफ्टर दैट हमारा जो है वो तहसील वाइज होता है, आफ्टर दैट हम जो है वो ब्लॉक वाइज है, आफ्टर दैट हम जो है वो पंचायत वाइज है।
तो गांधी जी को ये चीज बहुत बुरी लगी कि मैं यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने आया हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, आप कोई राइट नहीं है किसी भी मुद्दे में अपना इंटरफेरेंस देने का। तो गांधी जी ने बोला कि ब्रिटिशर्स हैड नो राइट टू ऑर्डर मी इन माय कंट्री, मेरे देश में अगर अंग्रेज मुझे ऑर्डर कर रहे हैं तो आई विल नॉट टॉलरेट इट, मैं इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगा। ही वाज ऑर्डर टू लीव चंपारण, जब उनको चंपारण को छोड़ने का ऑर्डर हुआ तो गांधी जी ने रिफ्यूज किया कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब गांधी जी ने ऑर्डर को नहीं माना तो कोर्ट से गांधी जी को एक रिटन नोटिस आया कि आपको कोर्ट में अपनी बात को रखना होगा कि आपने क्यों जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को नहीं माना। एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिशर्स की थी, तो उनकी बात मानना जो है वो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, लेकिन अगर वो ऑर्डर गलत है तो आप उसके अगेंस्ट जो है वो खड़े हो सकते हैं। तो गांधी जब कोर्ट में गांधी जी को बुलाया गया तो गांधी जी ने अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से जज के सामने रखा कि मुझे बताइए कि मेरा फॉल्ट क्या है, मेरे प्रेजेंट का फॉल्ट है। तो गांधी अपनी बात को इतना अच्छे तरीके से रखा और उनकी बात को नहीं मानते हुए जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इतनी ज्यादा घबरा गई कि उन्हें जो था वो गांधी जी के अगेंस्ट जो केस चल रहा था उसे अनटाइमली एकदम से ड्रॉप करना पड़ा। इज इट फाइन चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes. Next question is, how did so of the refund of these questions in your textbook also? How did the episode of the refund of refund of compensation होता है मुआवजा, episode of compensation change the plight, P-L-I-G-H-T, plight of the peasants, P-E-A-S-A-N-T-S. How did the episode of the refund of compensation change the plight of the peasants? जब गांधी जी ने अंग्रेजों से जो 25% देने के लिए वो एग्री हुए, तो गांधी जी जब एग्री हो गए कि हाँ कोई बात नहीं, हमें आप जितना पैसे देना चाहते हो उतना वापस करो, लेकिन इस बात को यहाँ पर खत्म करो। तो ये जो सारा हुआ, तो इसके बाद जो किसान थे जिन्होंने देखा कि हमारे लिए कोई थर्ड तो उस सारे विषय को देखने के बाद जो पीजेंट्स थे, चंपारण जो किसान थे, उनकी जिंदगी में बदलाव आए। The peasants now, the peasants, P-E-A-S-A-N-T-S, the peasants now gained, G-A-I-N-E-D, प्राप्त करना. The peasants now gained courage, C-O-U-R-A-G-E, courage. They saw that SAW, उन्होंने क्या देखा वहां पे? They saw that they had rights, R-I-G-H-T-S, they had rights, कि उनके भी कुछ अधिकार थे. The peasants now gained courage. They saw that they had rights and they had also defenders of their rights. They had rights and they had also defenders.
डिफेंडर्स मतलब कि जब आप जो है आपके राइट्स का हनन होता है, आपके अगेंस्ट कोई काम किया जाता है जो कि आपको लग रहा है कि हमारे हित में नहीं हो रहा है, हमारे जो हमारे राइट हैं, जो अधिकार हैं, उनके अगेंस्ट वो चीज जा रही है, तो आपके पास उसके लिए भी बहुत ज्यादा हित में नहीं हो रहा है, तो आप जो है अपनी बात को कोर्ट में जाकर रख सकते हैं। ठीक है, so they saw that they had rights and they had also defenders of their rights, कि उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनके अधिकारों का हित करने के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। They had also defenders of their 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 rights, rights, full stop. By and by the British planters left their estates, left their their estates, estates, जागीरें। एस्टेट्स मतलब बहुत बड़े बड़े जो जागीर, जैसे आपने गार्डन्स देखे होंगे, सिटी गार्डन्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े एरियाज में फैले होते हैं, तो वो होते हैं एस्टेट्स की। बहुत दूर दूर तक जो जमीनें थी, उपजाऊ जमीनें थी, उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना वो हक समझते थे कि ये जमीनें हमारी हैं, और जितनी भी वहां पे फसल उगती थी, जितना भी वहां पे प्रोडक्शन होता था, उस सारी का सारी को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था अपने कंट्रीज के लिए। वो अपने जो भी आपकी अमेरिका, जो भी ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज थी उस टाइम पे, वहां पे जो था वो इनको बढ़िया जो क्वालिटी थी वो वहां को एक्सपोर्ट कर दी जाती थी, जबकि काम कौन करता था, इंडियन पेजेंट्स करते थे। सो बाय एंड बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स लेफ्ट देयर एस्टेट्स, फुल स्टॉप। These estates came back to the peasants. These estates, these estates, estates came back to the peasants. फिर जब अंग्रेजों को वो जागीरें छोड़नी पड़ी, तो बाद में जमीनों के ऊपर, उन जागीरों के ऊपर किसका जो था वो हक हुआ, किसके हिस्से में वो आई, वहां के जो किसान थे उनको वो जमीनें मिली। These estates came back to the peasants. Full stop. Indigo sharecropping disappeared forever. नील की खेती जो थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई, उसके बाद नील की खेती वहां पर नहीं की जाती थी। इंडिगो sharecropping, इंडिगो sharecropping क्यों बोला है यहाँ पे कि जो भी उगता था, जो भी प्रोडक्शन होती थी, जो किसानों को जमीनें मिली हुई थी, अंग्रेजों ने क्या किया था कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो था वो किसानों को भी दिया हुआ था कि आप जो है वो इतना इतना हिस्सा आप अपने लिए रखिए, लेकिन वहां पे उनके अकॉर्डिंगली फसल बीजनी पड़ती थी। और कौन सी फसल बीजनी पड़ती थी, इंडिगो बीजनी पड़ती थी कि आप जो है हम आपको जो है वो एक खेत का 1/4 पार्ट देते हैं, आप इसमें प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन होगी वो इंडिगो होगी। ठीक है, वो अपनी ही मर्जी की फसल वहां पे उनसे मतलब प्रोडक्शन करवाते थे, और जो प्रोडक्शन होती थी फिर किसानों को वो किसको देनी पड़ती थी, शेयर होता था उसमें भी, है ना, उन्हीं को देनी पड़ती थी। और बेचार मतलब एक तरह से पूरी तरह से वो दबे रहते थे जो किसान थे। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग disappeared, DISAPPEARED, disappeared forever. Repeating again, the peasants now gained courage. They saw that they had rights and they had also defenders of their rights. By and by, the British planters left their estates. These estates came back to the peasants. Indigo sharecropping disappeared forever. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ओके, मुझे बुक देना था। Priyanshi is in the class. Yes, ma'am. Okay, okay. So write down the next question. List the places. ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा आई थिंक, बट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मतलब आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिलेगा ये अपने क्वेश्चन आंसर्स में, लेकिन इन्होंने टेक्स्ट में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड। देखिए, लिस्ट द प्लेसेस, आपको उन प्लेसेस की लिस्ट बनानी है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन, गांधी जी विजिटेड विजिटेड VISITED विजिटेड between his first meeting 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 with Shukla and his arrival wait children, between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. I am audible, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, fine. Between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. यानी आपको एक लिस्ट बनानी है कि गांधी जी कौन कौन प्लेसेस पे गए, कब से कब तक, जब वो शुक्ला के साथ कैलकाटा से चले थे और चंपारण तक पहुंचे थे। तो इन दो प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए गांधी जी कहां कहां पर रुके, कहां कहां पर उन्होंने विजिट करा। क्वेश्चन इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Okay. Yes, So write ma'am. down the answer. Gandhi ji's first meeting with Shukla was, Gandhi जी लिखने के apostrophe S. Gandhi ji's first meeting with Shukla, S of Shukla will be capital, with Shukla was at Lucknow. सबसे पहले लखनऊ में मिले थे ना शुक्ला महात्मा गांधी जी को। Yes. Gandhi ji's first meeting with Shukla was at Lucknow. LUCKNOW. Full stop.
then the two met at Calcutta. Then the two किसको बोला गया? The two मतलब वो दोनों, महात्मा गांधी जी और शुक्ला, फिर वो दोनों कहां पर मिले? कैलकटा में. Then the two met at Calcutta. CALCUTTA. Then the two met at Calcutta. Full stop. From there, comma, from there, comma, from there, THERE, वहां से, comma, the two went by train to पटना. पटना की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, PATNA लिखना आप लोग. From there, comma, the two went by train, WENT, second form of the verb we are using here. The two went by, by train to Patna. PATNA, P of Patna will be capital. Full stop. Shukla took Gandhiji. Shukla took Gandhiji to the house of Rajendra Prasad. Shukla took Gandhiji to the house of Rajendra. RAJENDR, R and P will be capital of Rajendra Prasad. Full stop. Sorry, Rajendra Prasad. Full stop नहीं है अभी तक. From there, the two went by train to Patna. Full stop. Shukla took Gandhiji to the house of Rajendra Prasad, but the letter was out of town. But the letter, यहाँ पे लेटर की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, LATTR होगी. यहाँ पे लेटर किसको बोला गया है? राजेंद्र प्रसाद को. लेटर LATTR, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है ये, LATTR. यहाँ पे लेटर जो है वो किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है राजेंद्र प्रसाद को, कि जब महात्मा गांधी शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर गए, बट द लेटर वॉज आउट ऑफ टाउन, तो उस टाइम राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे. बट द लेटर वॉज, लेटर नहीं लिखना है, नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बट ही वॉज आउट ऑफ टाउन, या लिख सकते हो बट राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन. अपनी समझ के लिए आप लिख सकते हो बट ही वॉज आउट ऑफ, Rajendra Prasad out town. Full stop. Now Gandhiji decided to go to Muzaffarpur. Now Gandhiji decided. Now Gandhiji decided to go to Muzaffarpur. M capital, MUZZ. अब मैं Z नहीं बोल रही हूँ क्योंकि Z जो है वो Z की मुजफ्फरपुर, राइट. ये मैं Z ही बोल देती हूँ, आप जी ना लिख दे. MUZZARPUR. Muzaffarpur.
मुजफ्फरपुर, full stop. There he stayed at प्रोफेसर मलकानी's हाउस. वहां पे वो किसके घर पर रुके? प्रोफेसर मलकानी के घर पर. There, THERE, there he stayed, STAYED, second form of the verb. There he stayed at Professor, 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 P will be Professor Malkani's, MALKAN'S, Malkani's house. Lastly, he went to Champaran. Lastly, 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 went to Champaran, CHAMPARAN. Repeating again. Gandhiji's first meeting with Shukla was at Lucknow. Then the two met at Calcutta. From there, the two went by train to Patna. Shukla took Gandhiji to the house of Rajendra Prasad, but he was out of town. Now Gandhiji decided to go to Muzaffarpur. There he stayed at Professor Malkani's house, and lastly he went to Champaran. क्या हुआ? गांधी जी सबसे पहले जो शुक्ला था वो गांधी जी के साथ कब उसकी मीटिंग हुई? लखनऊ में हुई. आफ्टर दैट दोनों कलकत्ता में मिले, एंड फ्रॉम देयर, वहां से दोनों जो थे वो बाय ट्रेन से पटना पहुंचे. शुक्ला जो थे सबसे पहले गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जो है वो अब कहाँ चलेंगे? मुजफ्फरपुर चलेंगे. अब मुजफ्फरपुर जाकर गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन के लिए रुके, जितने भी दिन के लिए रुके. एंड लास्टली जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो गांधी जी ने प्रोफेसर मलकानी के घर से डिसाइड किया कि अब जो है वो डायरेक्टली चंपारण जाकर जो है वो वहां के जो भी स्थिति है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है, उसको जाकर देखेंगे. इज इट फाइन चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Gandhiji chide the lawyers? Chide मतलब डांटना, फटकारना, CHIDE. बुक में आप देखेंगे तो वहां पे chided है, chided है, तो वो सेकंड फॉर्म यूज करी गई है. तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज did ऑलरेडी लग चुका है. सो वी विल यूज हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? सो व्हाई डिड गांधीजी chide the lawyers? CHIDE, chide. Why did Gandhiji chide the lawyers, 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 and what conclusion did he come to? What conclusion did he come to? गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों इतना ज्यादा डांटा फटकारा? और लास्ट में कौन से निर्णय के ऊपर गांधी जी पहुंचे? क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन सारी बातों का क्या एक सॉल्यूशन होना चाहिए? सो राइट डाउन द आंसर. द लॉयर्स वर चार्जिंग charging, CHARGING, the lawyers were charging very high fees from the poor peasants. The lawyers were charging very high fees from the poor peasants. Full stop. Gandhi ji chided them. Chided bolo, chided bolo, it's up to you. Gandhi ji chided
Now we are using here second form.